کیا آپ جانتے ہیں ایک دن اچانک آسمان سے ایسی خوفناک اور کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی جو پورے کائنات کو خاموش کر دے گی۔ بازاروں میں لوگ خرید فروخت کر رہے ہوں گے، کوئی دکاندار اپنے گراہک سے مول بھاؤ کر رہا ہوگا، دو آدمی شاید ایک کپڑا کھول کر اس کی قیمت طے کر رہے ہوں گے، لیکن اسے طے کر کے تھیلے میں رکھنے کا موقع انہیں کبھی نہیں ملے گا۔ کوئی شخص اپنے اونٹ کے لیے حوض میں پانی بھر رہا ہوگا، مگر وہ پانی اپنے اونٹ کو پلا بھی نہیں پائے گا، اور کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، مگر وہ لقمہ اس کے پیٹ تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اچانک آسمان سے ایک ایسی بھیانک آواز اترے گی جو پورے جہان کو دہلا کر رکھ دے گی۔ یہ آواز کسی بم کی نہیں ہوگی، نہ ہی یہ کسی قدرتی آفت کی آواز ہوگی، بلکہ یہ ہوگی اللہ کے حکم سے آنے والی قیامت کی پہلی نشانی۔ یہ ہوگی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں پھونک کی آواز۔ اس آواز کا پہلا جھٹکا لگتے ہی انسانوں کے دل خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ گربھوتی عورتیں دہشت میں اپنے پیٹ کے بچوں کو گرا دیں گی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائیں گے، لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے ایسے جیسے کوئی نشے میں ہو، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف انہیں بے حال کر دے گا۔ آج ہم جانیں گے اس خوفناک دن کی پوری داستان۔ کیا ہوگا سور میں پھونک دیے جانے کے پہلے ہی سیکنڈ میں؟ کیسے تباہ ہوگی یہ وشال زمین؟ کیا ہوگا سورج، چاند اور پوری گیلیکسیوں کا؟ اور پھر جب موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حشر کے میدان میں انسانوں کی حالت کیسی ہوگی؟ آئیے قرآن اور صحیح حدیث کے صفحوں سے جانتے ہیں قیامت کے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے منظر کو، جسے سن کر شاید آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے، لیکن یاد رکھیے قیامت اچانک نہیں آ جائے گی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت سی نشانیاں اور چیتاونیاں دیں گے۔ دجال کا فتنہ، یاجوج ماجوج کا تانڈو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ ان سب واقعات کے بعد کچھ سمے کے لیے دنیا میں امن اور سکون ہوگا، لیکن پھر شروع ہوگی اس دنیا کی آخری تیاری۔ ایک دن صبح لوگ نیند سے اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ سورج پورب سے نہیں بلکہ پشچم سے نکل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر پوری دنیا کے لوگ دہشت میں آ جائیں گے۔ ہر انسان اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے گا، ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، ہر کوئی رحمت مانگے گا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ پشچم کی طرف سے جب سورج نکل آئے گا، اسی لمحے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی توبہ، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی نیک بندہ قیامت کا وہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ایسی ہوا بھیجیں گے جو بے حد خوشبودار ہوگی اور ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم۔ جس انسان کو یہ ہوا چھو جائے گی اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ خاموشی سے موت کی آگوش میں چلا جائے گا، اور پھر اس زمین پر ایک بھی ایمان والا انسان زندہ نہیں بچے گا۔ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ ہوں گے تاریخ کے سب سے بدتر اور نیچ لوگ۔ وہ جانوروں کی طرح کھلے عام سڑکوں پر گناہ اور بے حیائی میں ڈوبے ہوں گے۔ دھرتی پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اللہ کہنے والا ہو، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دیا جائے گا اور قرآن کے حروف بھی مٹا دیے جائیں گے، اور ٹھیک اسی وقت ان بدترین لوگوں پر اللہ کا آخری غضب اتر پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے اطمینان سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور کے مالک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ سے لگائے، سر جھکائے
और कान लगाए अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही वह आखिरी हुक्म आएगा, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम सूर में पहली फूंक मारेंगे। इसे कहा जाता है नफ़ख़तुल फ़ज़ा, यानी डर और दहशत की फूंक। शुरुआत में उस सूर की आवाज बहुत हल्की होगी। लोग कान लगाकर सुनने की कोशिश करेंगे कि यह कैसी आवाज है, लेकिन कुछ ही लम्हों में वह आवाज इतनी तेज, इतनी डरावनी हो जाएगी कि पूरी दुनिया भयानक झटकों से कांपने लगेगी। कुरान की सूरह तकवीर में अल्लाह फरमाते हैं, जब सूरज की रोशनी बुझा दी जाएगी, जब सितारे टूट टूट कर गिरने लगेंगे, जब पहाड़ों को चलाया जाएगा और जब समुद्रों को उफान पर ला दिया जाएगा। आज जो इंसान हिमालय और आल्प्स जैसे ऊंचे पहाड़ों को देखकर हैरान होता है, उस दिन वही पहाड़ रंग बिरंगी रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। समुद्रों का पानी सूख जाएगा और फिर उसी जगह भड़कती हुई आग जलने लगेगी। कब्रें फट जाएंगी, धरती जगह जगह से चिर जाएगी। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर होगा जब इंसान आसमान की तरफ देखेगा। आज जो आसमान हमें नीला और खूबसूरत दिखाई देता है, उस दिन वही आसमान लाल गुलाब की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरह अर्रहमान में अल्लाह फरमाते हैं, उस दिन आसमान फट जाएगा और पिघले हुए तांबे की तरह लाल हो जाएगा। फिर अल्लाह पूरे आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे कोई लिखने वाला अपना लिखा हुआ कागज लपेटकर बंद कर देता है। उस जबरदस्त आवाज और जमीन को हिला देने वाले भयानक झलझले की वजह से दुनिया के तमाम इंसान, जिन्न और परिंदे जानवर सब के सब मर जाएंगे। पूरी कायनात पर छा जाएगी एक डरावनी और गहरी खामोशी। जब जमीन की हर जानदार मखलूकन खत्म हो जाएगी, तब अल्लाह ताला मौत के फरिश्ते से सवाल करेंगे, ऐ अजराइल, अब बताओ कौन कौन जिंदा है। मौत के फरिश्ते मलाकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम कांपती हुई आवाज में अर्ज करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, आप तो हमेशा से जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे, आपके सिवा अभी जिंदा है। हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील आपके अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और मैं आपका कमजोर बंदा। फिर अल्लाह ताला हुक्म देंगे, जाओ जिब्रील की रूह कब्ज कर लो, मीकाईल की रूह कब्ज कर लो और मेरे अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की भी रूह कब्ज कर लो। अल्लाह के हुक्म से एक एक करके कायनात के सबसे ताकतवर फरिश्ते भी मौत का स्वाद चखेंगे। फिर अल्लाह दोबारा सवाल करेंगे, अब बताओ कौन जिंदा है। मलाकुल मौत बहुत डरते हुए अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, अब सिर्फ मैं आपका एक कमजोर बंदा जिंदा हूं। तब अल्लाह की तरफ से आएगा एक भयानक हुक्म। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मलाकुल मौत, अब तुम भी मर जाओ। और उसी लम्हे मौत का फरिश्ता एक इतनी डरावनी चीख के साथ मौत को गले लगाएगा कि अगर उस वक्त आसमान और जमीन में कोई जिंदा होता तो वह भी उस चीख के डर से मर जाता। अब पूरी कायनात खाली हो चुकी होगी, न कोई इंसान, न कोई जिन्न, न कोई फरिश्ता। आसमान और जमीन के किसी कोने में एक चींटी भी जिंदा नहीं होगी। सिर्फ एक ही जात बाकी रहेगी, वह है अल्लाह सुब्हानहू व ताला, जो एक है और बेमिसाल है। फिर अल्लाह इस तबाह हो चुकी जमीन को अपने कब्जे में लेकर 3 बार झकझोरेंगे और बड़ी शान और जलाल के साथ पूरी कायनात को पुकार कर पूछेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है। लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि जवाब देने के लिए कोई जिंदा ही नहीं होगा। कहां गए वो घमंडी फिरौन, कहां गए वो नमरूद, कहां है वो जालिम हुक्मरान जो दुनिया में खुद को खुदा समझते थे। सब खामोश, सब मिट चुके होंगे। तब अल्लाह खुद ही अपने सवाल का जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहा, आज की बादशाही सिर्फ अल्लाह की है, जो अकेला है और सबसे ज्यादा कुदरत वाला है। फिर इसी हालत में गुजर जाएगा 40 का एक दौर। लेकिन यह 40 क्या है? क्या वह 40 दिन होंगे या 40 महीने या फिर 40 साल? इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला आसमान से एक खास किस्म की बारिश बरसाएंगे। ये कोई आम बारिश नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आने वाली वह बारिश होगी जो मौत के बाद जिंदगी की तैयारी करेगी। उस बारिश का पानी जमीन में समा जाएगा
और जमीन के अंदर मौजूद इंसानों के जिस्म का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसे अजपुज ज़नब कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, वही छोटा सा हिस्सा एक बीज की तरह फिर से उगने लगेगा। फिर इंसान का जिस्म उसी तरह दोबारा बनने लगेगा जैसे मिट्टी से पौधा उगता है, धीरे धीरे मगर मुकम्मल। जब सारे जिस्म तैयार हो जाएंगे, तब अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेंगे और उन्हें हुक्म देंगे कि वह दूसरी बार सूर में फूंक मारे। इसे कहा जाता है नफखतुल बस, यानी दोबारा जिंदा होने की फूंक। जैसे ही वह सूअर फूंका जाएगा, करोड़ों करोड़ रूहें जो इस्राफील अलैहिस्सलाम के सूर के अंदर रखी गई थी, वो सब मधुमक्खियों की तरह गुनगुनाती हुई उड़कर अपने अपने जिस्मों में दाखिल हो जाएंगी और उसी पल जमीन फट पड़ेगी। करोड़ों इंसान ऐसे उठकर खड़े हो जाएंगे जैसे कोई गहरी नींद से अचानक चौंक कर जाग जाए। वो हैरानी से चारों तरफ देखेंगे और कहेंगे, हाय अफसोस, हमें हमारी नींद की जगह से किसने उठा दिया। तब ईमान वाले लोग कहेंगे, यही तो वह दिन है जिसका वादा रहमान ने किया था और अल्लाह के रसूलों ने जो कहा था वह सब बिल्कुल सच था। फिर सब लोग एक भयानक आवाज की तरफ सर झुकाए हुए अंधों की तरह दौड़ते चले जाएंगे। एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस दिन मर्द और औरत सब नंगे होंगे? क्या वे एक दूसरे को देखेंगे नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, उस दिन की हालत इतनी डरावनी होगी कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश ही नहीं होगा। लोग उस दिन मातालों की तरह दाएं बाएं हर तरफ भागते फिरेंगे। भागते भागते पूरी इंसानियत एक ऐसे मैदान में इकट्ठी होगी जो आज की दुनिया जैसा नहीं होगा। हश्र का वह मैदान होगा सफेद रोटी की तरह बिल्कुल समतल। न वहां कोई पहाड़ होगा जहां कोई छिप सके, न कोई दरख्त होगा जो किसी को छाया दे सके। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह होगी, आज जो सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसी जलते हुए सूरज को उस दिन इंसानों के सिर के ऊपर सिर्फ 1 मील की दूरी पर ला दिया जाएगा। सूरज की भयानक गर्मी से इंसानों के जिस्म से झरने की तरह पसीना बहने लगेगा। वह पसीना इतना ज्यादा होगा कि धीरे धीरे पसीने का समंदर बन जाएगा और लोग अपने गुनाहों के हिसाब से उसी पसीने में डूबने लगेंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और जो बड़े बड़े गुनहगार होंगे उनका पसीना मुंह तक पहुंच जाएगा। वे लोग अपने ही बदबूदार पसीने के समंदर में डूबते उतराते रहेंगे। उस खौफनाक हालत में लोग चाहेंगे कि किसी तरह हिसाब किताब शुरू हो जाए ताकि इस अजियत से छुटकारा मिले। तब पूरी इंसानियत दौड़कर जाएगी। पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। लोग कहेंगे, ऐ हमारे अब्बा, आप हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश कीजिए ताकि कम से कम हिसाब तो शुरू हो। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो पड़ेंगे और कहेंगे, नहीं, आज मैं यह नहीं कर सकता। आज अल्लाह इतना गजबनाक है जितना वह पहले कभी नहीं हुए। मैंने भी तो एक गलती की थी, आज मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं मालूम। तुम लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर लोग दौड़ेंगे हजरत नूह के पास, वह कहेंगे मैं नहीं। फिर हजरत इब्राहिम के पास, वह भी मना कर देंगे। फिर हजरत मूसा के पास और फिर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम के पास। लेकिन उस दिन हर नबी डर से यही कहेंगे, नफसी नफसी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब पूरी इंसानियत मायूसी के आखिरी किनारे पर पहुंच जाएगी, तब सब लोग दौड़ते हुए आएंगे हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और उस दिन सिर्फ वही फरमाएंगे, अना लहा, अना लहा, यानी हाँ, आज मैं ही सिफारिश करूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह की ऐसी ऐसी तारीफ और हम्द बयान करेंगे जो उससे पहले किसी इंसान को सिखाई ही नहीं गई होगी। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद, अपना सर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा। सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर शुरू होगा तारीख का सबसे बड़ा और आखिरी अदालत, वह अदालत जहां काजी खुद रब्बुल आलमीन होंगे। जब हिसाब शुरू होगा
तो इंसानों के आमाल नामे उड़ते हुए उनके हाथों में आ गिरेंगे। जो लोग नेक होंगे उन्हें उनका आमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और जो गुनहगार होंगे उन्हें उनका आमाल नामा बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा। फिर इंसान अपनी किताब पढ़कर हैरान रह जाएगा। फिर इंसान अपनी किताब पढ़कर कांप उठेगा और हैरत से कहेगा, हाय हमारी बदनसीबी, ये कैसी किताब है, इसने तो कोई छोटा या बड़ा गुनाह भी लिखे बिना नहीं छोड़ा। इसके बाद मिजान यानी तराजू कायम किया जाएगा और उसमें इंसानों के आमाल तोले जाएंगे। राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी होगी तो वह भी तौली जाएगी, और राई के दाने के बराबर अगर कोई गुनाह होगा तो वह भी सामने आ जाएगा। फिर आखिर में इंसानों को गुजरना होगा पुले सिरात से। ये वह पुल है जो जहन्नम की आग के ऊपर बिछाया गया होगा। हर इंसान को उसी पुल से गुजरकर जन्नत तक पहुंचना होगा, लेकिन वह पुल बाल से भी ज्यादा पतला होगा और तलवार से भी ज्यादा तेज। चारों तरफ घोर अंधेरा छाया होगा। उस वक्त ईमान वालों को उनके ईमान के मुताबिक नूर दिया जाएगा। कोई उस पुल को बिजली की तरह तेजी से पार कर जाएगा, कोई घोड़े की रफ्तार से गुजर जाएगा, कोई दौड़ते हुए पार करेगा, और इस तरह वह लोग जन्नत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास ईमान नहीं होगा और जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, वो उस तेज पुल को पार करते हुए कटते चले जाएंगे और टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ेंगे उस खौफनाक जहन्नम की आग। प्यारे दोस्तों, क़यामत की यह खौफनाक कहानी कोई अफसाना नहीं है, यह हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी और अटल हकीकत है। एक दिन हम सबको इस दिन का सामना करना ही होगा। जरा एक बार खुद से सवाल कीजिए, जिस दिन पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे, जिस दिन नबी भी डर से कांप रहे होंगे, क्या हम उस दिन के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं? हमारी इस छोटी सी जिंदगी का घमंड, दौलत और ताकत, क्या उस दिन इनकी कोई कीमत होगी? अभी भी वक्त है। अल्लाह ताला की तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। आइए हम अपने जिंदगी के हिसाब को ठीक कर लें, उस दिन के आने से पहले जब हमसे हमारा हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अगर कुरान और हदीस की ये सच्ची बातें आपके दिल को जरा सा भी हिला गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी नसीहत मिले। क़यामत और आखिरत के बारे में अगर आपके दिल में और भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस्लाम के ऐसे ही अनसुने और रूह को हिला देने वाले मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह ताला हम सबको हश्र के मैदान की उस खौफनाक मुसीबत से महफूज रखे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।